I'll never ever recommend you to read Upinder Singh this thick book. अगर मान लो पेपर बहुत टफ आ गया हिस्ट्री का, सॉल्व ही नहीं हो रहा, तो इट कैन नॉट बी सॉल्व बाय एनीबॉडी। लेट्स से तुमने उपिंदर सिंह पढ़ भी ली, 10 से 10 क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिया तुमने, ठीक है, फायदा क्या हुआ? व्हाट अबाउट अदर एरियाज? हिस्ट्री करते रह जाओगे, लॉस। यू हैव वेस्टेड योर 20 डेज। उपिंदर सिंह पढ़ने सिर्फ पढ़ने 20-25 दिन लगेगा, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी की तरह, और सिर्फ एंशिएंट एंड अर्ली मिडिवल हिस्ट्री कवर्ड है उसमें, मिडिवल मॉडर्न भी कवर नहीं है। आई विल नेवर ever suggest to read Upinder Singh. Have you seen Upinder Singh? तो एक शॉर्ट्स आया, आर द एनसीईआरटीज इनफ फॉर हिस्ट्री बुक्स, फॉर यूपीएससी क्वेश्चंस, टू टैकल हिस्ट्री क्वेश्चन? उन्होंने बोला नो। मैंने कहा ठीक है, यस ट्रू, सही है, तो व्हाट एल्स टू रीड? पूछोगे ना, इफ यू रीड मी मैम, आर द एनसीईआरटीज इनफ for tackling UPSC questions? You'll ask me. I'll say, no, they're not. They're not completely. If there are 10 questions, let's say, you'll be able to solve maybe 6 to 7 questions from NCERT books. They'll say, ma'am, what about 3 to 4 questions? What are the sources? I'll say, revise your NCERT as well. Depend on these 6 to 7 questions. Mark it well and go. Then get over with it. Okay? Because you need only 50 to 60% marks to clear prelims. All right. Then, nahi ma'am, I want to read more. I will never ever suggest to read Upinder Singh. Have you seen Upinder Singh? This much thick book, Upinder Singh. This much thick book, almost 600 pages approx. Upinder Singh, who is Upinder Singh? Upinder Singh is the daughter of late Manmohan Singh ji, and she's an historian. She has worked in very prestigious universities, and she has written a book on ancient and early medieval. So ancient and early medieval only. For ancient and early medieval, for UPSC aspirant, is it advisable to read 600 pages for 3-4 questions? No, it's not. So what is solution? You stick to NCERTs, you mug it well, you understand it well. So whatever question comes from NCERT, you're able to comfortably solve them and you are getting through. That is the purpose, na, getting through, not to do PhD. PhD जो करते हैं वो PhD करते रह जाते हैं. That is a different goal altogether. Clearing UPSC needs mastery over the content which is there in your hand, which can be completed. What can be completed? NCERT can be completed. NCERT has plethora of information. If at all I'll suggest you to read something, I'll suggest you other books like IGNOU का book बहुत अच्छा है, ठीक है, NIOS की book बहुत अच्छी है. That's it. I'll never ever recommend you to read Upinder Singh this thick book. That has been recommended by that faculty with due respect. So that is the misguidance going on in the market, that I don't want you to be misguided. Stick to NCERT, read it, revise it well, and you're through. You're through. Anything else? अगर मान लो पेपर बहुत टफ आ गया हिस्ट्री का, सॉल्व ही नहीं हो रहा, तो इट कैन नॉट बी सॉल्व बाय एनीबॉडी। लेट्स से तुमने उपिंदर सिंह पढ़ भी ली, 10 से 10 क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिया तुमने, ठीक है, फायदा क्या हुआ? व्हाट अबाउट अदर एरियाज? तुम हिस्ट्री करते रह जाओगे, तो इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी कौन करेगा? 10 क्वेश्चन सिलेक्शन हो जाता है क्या? तो अगेन माफ करिएगा, कभी कभी इधर उधर भटक जाती हूँ मैं। तो क्या कहने का मतलब, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक, ये आपके मेजर पोर्शन है कोर सब्जेक्ट के, ठीक है, आपने इनकी एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली, ठीक है। एंड फॉर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स लाइक आर्ट एंड कल्चर, एनवायरमेंट, इकोलॉजी तो रह गया, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, 4-5 एरियाज है विच यू हैव टू सप्लीमेंट विद contemporary affairs. I call it contemporary affairs, not current affairs. Contemporary affairs 1.5 साल का current affairs थोड़ी ना होता है. UPSC asks current affairs from even 1 साल beyond भी पूछता है. तो I call it contemporary affairs, not current affairs. We call it at Triumph IS, at IS school. Contemporary affairs. इसको आप supplement कर लो whichever book, whichever monthly magazine. I am least bothered and I do not have any suggestions. Anyone. All of them are competing well. So supplement it with these and solve it with PYQs. सॉल्व कर लिया, ये मैंने पहली बार बोला ओरिएंटेशन सेशन में, आज भी बोल रही हूँ, प्री क्लियर करके आओगे, लिख के आओगे ना, तो विल हैव डिस्कशन, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन डिस्कशन,
I'll prove it why this worked. It will work, trust me. तो आपने सॉल्व कर लिया क्वेश्चंस, मान लो पॉलिट हिस्ट्री के इस बार कितने आए थे, पीटी में 10 क्वेश्चन आए थे रफली, राइट? हैव यू सीन द पेपर? प्रीलिम्स की बात करें हम तब, प्रीलिम्स की, ठीक है, देखा है 24 का पेपर, ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस फ्रॉम हिस्ट्री, ओनली हार्डली 5 to 6 could be solved from NCERTs, हार्डली, सच में हार्डली 4-5 क्वेश्चन के हवा ही नहीं लग रहे थे, मत लगे, कोई बात नहीं, मेंस में आ जाते हैं 6 to 7 क्वेश्चन फ्रॉम हिस्ट्री, हिस्ट्री इंक्लूड्स पोस्ट इंडिपेंडेंस वर्ल्ड हिस्ट्री, आई मीन, ठीक है, 6 to 7 क्वेश्चंस आए थे, इसमें से कंफर्टेबली 4-5 क्वेश्चंस कुड बी सॉल्व फ्रॉम एनसीईआरटी, विन विन सिचुएशन नहीं है। लेट, अब उपिंदर सिंह पढ़ रहे हो, उपिंदर सिंह पढ़ना तो वो नहीं है ना, महारत नहीं है या बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई चीज पढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई चीज को रिपीट करके दिमाग में रखना बड़ी बात है। समथिंग यू रेड and then you're not revising, you're not getting time to repeat it. What is the significance of your first attempt, first effort, that is first reading? Lost. You have wasted your 20 days. उपिंदर सिंह पढ़ने सिर्फ पढ़ने 20-25 दिन लगेगा, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी की तरह, सिर्फ और सिर्फ 25 दिन। Trust me, when for the first time in my life I read NCERT medieval history, it took me 20 days to complete it. When I was a student, naive, बिल्कुल. It took me 20 days. And that too for a person who had a natural flair for history, loved history. Imagine a student who do not love history, who do not like history, and who never have got a good faculty or teacher to tell them essence of history. Will they be able to read medieval history being a naive? Complete 20 days में नहीं होगा, 30 days में लग जाएगा medieval history complete करने में, बुक ही बुक सिर्फ। जब उपिंदर सिंह, इमेजिन 30-40 डेज लग जाएंगे खत्म करने में, इतनी मोटी बुक है, इतनी मोटी बुक, ग्रीन कलर। सो दिस इज बीइंग एडवाइस। सो एज आई सेड, तो विन विन सिचुएशन है, उपिंदर सिंह पढ़ लिया आपने, और सिर्फ एंशिएंट एंड अर्ली मिडिवल हिस्ट्री कवर्ड है उसमें, मिडिवल मॉडर्न भी कवर नहीं है। तो 30 डेज फॉर अ बुक विथ नो रिविजन, आई वेस्टेड माई 30 days ऑफ लाइफ, वेस्टेड, कंप्लीटली एलिमिनेटेड। मैं बोल दूं मुझे 30 दिन अपने उधार दे दो, मुझे जीना है 30 दिन, कभी नहीं दोगे, कभी नहीं दोगे, कोई भी बोल दे कभी नहीं दोगे, बोलो ऐसा है तुम भी 30 दिन जी सकते हो, मैं भी 30 दिन जी सकती हूँ, तुम अपने 30 दिन मुझे दे दो, तुम चले जाओ, आज 30 दिन जाना ही है, कभी नहीं दोगे, बोलो मुझे 30 दिन जी जाना है। ये 30 दिन आपने बर्बाद कर दिए ऐसा काम करने में जो आपके लिए काम ही नहीं है। दैट इज व्हाट इज, यू नो, आई एम ट्राइंग टू बर्स्ट दिस मिथ एंड मिसगाइडेंस। कभी मत पढ़ना, वाहियात चीजें। 50 to 60% प्रीलिम्स में भी आएगा, 50 to 60% मेंस भी आके आपका सिलेक्शन हो जाना है। सो ये है, हिस्ट्री आपने कर ली, पॉलिटी इकोनॉमी की 10-10, 12-12 क्वेश्चन कर लो आप, किसी एक सेक्शन में एक्सेप्शनली वेल होता है, सबका एक स्ट्रॉन्ग एरिया होता है, प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। सो डू नॉट बी मिसगाइडेड। नाउ कमिंग बैक टू आवर डिस्कशन, मुगल्स, ठीक है,